السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 28 نومبر 2023 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے آج 13 جمادی اول 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اتراکھنڈ کی سلکیارا ٹنل میں پھنسے 41 مزدوروں کا آج منگل کو 17واں دن ہے، لیکن ابھی تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکام مسلسل کہہ رہے ہیں کہ انہیں بہت جلد بحفاظت باہر نکال لیا جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ بچاؤ کے درمیان ایک کے بعد ایک کئی مسائل سامنے آ رہے ہیں۔ پہلے ڈرلنگ کے لیے لائی گئی امریکی مشین ٹوٹ گئی اور اب خراب موسم نئی مصیبت کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اترکاشی کی سلکیارا سرنگ میں پھنسے 41 مزدوروں تک پہنچنے کے لیے امریکی اوجر مشین کے ٹوٹنے کے بعد دستی ڈرلنگ کی جا رہی ہے۔ 86 میٹر ڈرلنگ کی جانی ہے، جس میں سے اب تک 36 میٹر کھدائی ہو چکی ہے۔ 24 نومبر کو سلکیارا کے سرے سے کھدائی کر کے ریسکیو پائپ ڈالنے کی کوشش کے دوران امریکہ سے لائی گئی ڈرلنگ مشین کے بلیڈ ورکرز کے مقام سے 12 میٹر پہلے ہی ٹوٹ گئے، جس کی وجہ سے ریسکیو کو درمیان میں روک کر بلیڈ نکالنا پڑا۔ اتراکھنڈ میں بگڑتا ہوا موسم ریسکیو کے دوران نئی مشکلات پیدا کر رہا ہے۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ریاست میں بارش اور ژالہ باری کی پیشگوئی کی ہے۔ سائنسدانوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس سے بچاؤ میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہے۔ نائب صدر جمہوریہ جگدیپ دھنکر کو کانگریس کے رکن پارلیمنٹ مانم ٹیگور کی جانب سے مبینہ طور پر مہاتما گاندھی کا وزیر اعظم نریندر مودی سے معاوضہ نہ کرنے پر شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ دھنکر نے گاندھی کو پچھلی صدی کا مہاپروش اور پی ایم مودی کو اس صدی کا یوگ پروش قرار دیا۔ نائب صدر جمہوریہ نے کہا کہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، پچھلی صدی کے مہاپروش عظیم آدمی مہاتما گاندھی تھے، نریندر مودی اس صدی کے یوگ پروش ہے۔ وی پی دھنکر مہاراشٹر کے ممبئی کے اوپرا ہاؤس میں جین اور فلسفی شرمیواد راج چندر کے یوم پیدائش کی تقریبات کے موقع پر منعقدہ ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ ایک ایسے وقت میں جبکہ ہندوستان میں مذہبی جنون میں مبتلا شدت پسندوں کی ایک بڑی تعداد غزہ پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کے بعد بھی اسرائیل کی حمایت کر رہی ہے، اداکارہ راج شری دیش پانڈے نے انہیں آئینہ دکھاتے ہوئے اپنا فلم فیئر OTT ایوارڈ اہل غزہ کے نام کر دیا۔ نیٹ فلکس پر ٹرائل بائی فائر سیریز کے لیے انہیں بیسٹ ایکٹر سیریز خاتون کا فلم فیئر OTT ایوارڈ ملا، جسے حاصل کرتے ہوئے انہوں نے جذباتی تقریر کی اور ان لوگوں کو یاد کیا جو غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری میں مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنا ایوارڈ غزہ میں مارے گئے بے قصور افراد اور فلسطین کے نام وقف کرنے کا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرا یہ ایوارڈ ان تمام لوگوں، بچوں اور خواتین کے نام ہے جو غزہ اور فلسطین میں جاری جنگ میں مارے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایوارڈ کو ملک کے دیہاتوں اور کسانوں سے بھی منسوب کیا۔ اتر پردیش پولیس نے نماز فجر کے وقت ریاست بھر میں خصوصی مہم چلا کر 61,339 مذہبی مقامات پر نصب لاؤڈ اسپیکرز کو چیک کیا۔ چیکنگ کے دوران 7,688 لاؤڈ اسپیکر کی آواز کم کرائی گئی اور 3,238 اسپیکر نکلوا دیے گئے ہیں۔ بارہ بنکی میں 3 افراد کے خلاف مقدمہ درج کیے جانے کی بھی اطلاع ہے، جبکہ کئی دیگر مقامات پر نوٹس دے کر دوبارہ غلطی نہ کرنے کی تاکید کی گئی۔ اتر پردیش حکومت کی ہدایت کے مطابق ریاست میں لاؤڈ اسپیکرز یا ساؤنڈ ایمپلیفائر کے خلاف خصوصی مہم چلائی گئی ہے۔ ریاستی پولیس ہیڈ کوارٹرز کی خصوصی ہدایت کے تحت صبح 5 بجے سے 7 بجے تک ریاست کے تمام اضلاع اور کمشنریٹ میں سینئر افسران کی قیادت میں عوامی مقامات و مذہبی مقامات پر خصوصی مہم چلا کر کارروائی کی گئی۔ مقرر کردہ آواز کے معیار کی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے لوگوں کو خبردار کیا گیا اور لاؤڈ اسپیکرز کی تعداد اور آواز معیار کے مطابق رکھنے کا نوٹس دیتے ہوئے سخت کارروائی کی وارننگ بھی دی گئی۔ ملک کے معروف وکیل اور سابق مرکزی وزیر کپل سبل نے ایک بار پھر ملک کی صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے انڈین ایکسپریس میں لکھے گئے اپنے بے باک مضمون میں موجودہ صورتحال کو غیر اعلانیہ ایمرجنسی سے تعبیر کیا اور اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ عدالتیں اس سلسلے میں خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ انہوں نے سرکاری اداروں اور مشنری کے غلط استعمال کے ذریعے شہریوں کے بنیادی حقوق کو پامال کیے جانے کا حوالہ دیا۔ کپل سبل نے اپنا مضمون اندرا گاندھی کے ذریعے نافذ کی گئی ایمرجنسی کے حوالے سے شروع کیا ہے، پھر یہ نشاندہی کی ہے کہ وہ ایمرجنسی بنیادی حقوق کو معطل کر کے اعلانیہ نافذ کی گئی تھی، مگر موجودہ حالات غیر اعلانیہ ایمرجنسی ہے۔ اتر پردیش مظفر نگر ضلع میں واقع ایک مشہور کالج کا ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے، جس میں کچھ برقع پوش لڑکیاں فیشن شو کے دوران کیٹ واک کرتی نظر آ رہی ہے۔
इस वीडियो के वायरल होने के बाद जमात उलमा की जानिब से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वाज़ेह हो कि शहर के नामूर स्कूल श्री राम कॉलेज में गुज़िश्ता 3 दिनों से फैशन शो का प्रोग्राम जारी था, जिसमें मंदाकिनी समेत बड़ी फिल्मी शख्सियात ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर गुज़िश्ता शाम फैशन शो के दौरान कुछ तालिबात ने बुर्का पहनकर रैंप पर कैटवॉक की, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अलीना नामी एक तालिबा ने बुर्का पहनकर रैंप पर कैटवॉक की। इसके बाद इसने अपने इज़हार ख्याल में कहा कि हमारे ज़िम्मेदारान हमें कहते हैं कि यहाँ कॉलेज में आकर नई तख्लीकी सलाहियतें पैदा करें, जिसकी वजह से हम मुख्तसर लिबास बना रहे थे, जिस पर हमने सोचा कि हम एक मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हमें मुस्लिम कम्युनिटी की लड़कियों के लिए भी कुछ करना चाहिए। ये काम हमने बुर्का पहनकर किया है। हम कहना चाहते हैं कि बुर्का फ़ैशन में भी आ सकता है, ना कि लड़कियाँ इसको सिर्फ घर में पहनें। ये वीडियो सामने आने के बाद जमात उलमा हिंद के ज़िले कन्वीनर मौलाना मुकरम खासमी ने कहा कि बुर्का इन बच्चों के फैशन शो का हिस्सा नहीं जिनके साथ ये प्रोग्राम किया जा रहा है। ये एक मज़हब को निशाना बनाने का मामला है। इससे मुस्लिम कम्युनिटी के मजहबी जज्बात मजरूह हुए हैं। उन्होंने कहा कि जमात इसकी मजम्मत करती है और कॉलेज इंतज़ामिया से अपील करती है कि वो मुस्तकबिल में ऐसा कुछ ना करें। तृणमूल कांग्रेस ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के तेजस तैयारे में प्रवास करने पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि डर है कि तेजस तैयारा भी कहीं गिरकर तबाह ना हो जाए। तृणमूल कांग्रेस के लीडर शांत हुसैन ने कहा कि जब वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रो गए थे तो चंद्रयान 2 का काम हो गया। जब अदाकारा कंगना रनावत ने इनसे मुलाकात की तो इनकी फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। तृणमूल कांग्रेस के लीडर ने मजीद कहा कि जब क्रिकेटर विराट कोहली ने इनसे मुसाफिया किया तो इन्हें मुसलसिल 3 साल तक सेंचुरी नहीं मिली। उन्होंने कहा कि हाल ही में मुनक़िदा वर्ल्ड कप में मुसलसिल 10 मैच जीतने के बाद हिंदुस्तान फाइनल में इसलिए हार गया क्योंकि हमारे वज़ीर-ए-आज़म इस स्टेडियम में गए थे। उन्होंने कहा कि इन्हें खदशा है कि कहीं यह मखसूस तैयारा कुछ अरसे में गिरकर तबाह ना हो जाए। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस के दूसरे लीडर कुणाल घोष ने मरकजी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रोटी कपड़ा मकान जैसे मसाइल से तवज्जो हटाई जा रही है। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात करीब आ रहे हैं। बीजेपी की पॉलिसियां अवाम दुश्मन है और जानती है कि वो हारेंगे, इसलिए कभी बीजेपी मजहब के नाम पर तो कभी नौजवानों के नाम पर कौम परस्ती की सियासत कर रही है। उत्तर प्रदेश संभल के समाजवादी पार्टी के एमपी शफीकुर रहमान बर्क ने एनसीईआरटी के निसाब में रामायण और महाभारत के अबवाब समेत एनसीईआरटी कमेटी की रिपोर्ट की मुखालिफत की। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा है कि रामायण और महाभारत को निसाब में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ये कुरान शरीफ से बड़ी किताब नहीं है। रुकन पार्लियामेंट ने कहा कि अगर रामायण और महाभारत को मजहबी बुनियादों पर शामिल किया जा रहा है तो कुरान शरीफ अल्लाह का कलाम है। दुनिया में कुरान से बड़ी कोई किताब नहीं है, इसे भी शामिल किया जाना चाहिए। अगर एनसीईआरटी की किताबों में हिंदुओं के मजहबी अबवाब शामिल हैं तो दूसरे मज़ाहिब के अबवाब भी शामिल किए जाएं। समाजवादी पार्टी रुकन पार्लियामेंट ने सकाफत और हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ देने के लिए एनसीईआरटी की किताब में रामायण और महाभारत के अबवाब शामिल करने पर सवाल उठाए। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की हलाल सर्टिफिकेशन पर पाबंदी और तेलंगाना में बीजेपी की हुकूमत बनने पर मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करने के ऐलान पर बरहम नजर आए। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि हलाल एक मजहबी मामला है और मुसलमानों में भी गरीब मौजूद हैं। मेंबर पार्लियामेंट ने कहा कि सबको अपने मजहब के मुताबिक काम करने दिया जाए। तेलंगाना में जुमेरात 30 नवंबर की पोलिंग से कबल तमाम पार्टियों की इंतखाबी मुहिम शदीद तर हो गई है। आज मंगल को इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। शाम 6 बजे इंतखाबी मुहिम का शोर थमने से कबल तमाम पार्टियों के बड़े लीडर तेलंगाना पहुंच गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 3 दिनों से तेलंगाना में ही क़ैमा-ज़न हैं, जबकि वज़ीर दाखिला अमित शाह भी जगह जगह रैलियां कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में भारतीय राष्ट्र समिति इक़्तिदार को बचाने की जद्दोजहद कर रही है, मगर कांग्रेस के तेवर इंतहाई जारहाना नजर आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का दावा है कि मुअल्लिक़ असेंबली का सवाल ही नहीं उठता, बल्कि कांग्रेस वाज़ेह अक्सरियत हासिल करके हुकूमत बनाएगी। ऐसे वक्त में जबकि तेलंगाना में इंतखाबी मुहिम आखिरी मरहले में दाखिल हो चुकी है, इसे फ़िरक़ावाराना रंग देने की कोशिशें भी तेज़ हो गई है। बीजेपी ने वादा किया है कि बरसर इक़्तिदार आने पर वो तारीख़ी शहर हैदराबाद का नाम बदलकर इसे भाग्यनगर कर देगी। दूसरी जानिब कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए केसीआर के आईटी पार्क के वादे पर हैरत का इजहार किया है। डीके शिव कुमार की हैरत पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन अवैसी ने जवाब दिया है कि अगर कांग्रेस लीडर ने कुछ नहीं सुना तो ज़रूरी नहीं है कि इसका वजूद ही ना हो। दरअसल बीआरएस ने हैदराबाद में मुसलमानों के लिए आईटी पार्क बनाने का ऐलान किया है। इस पर कांग्रेस लीडर डीके शिव कुमार ने एतराज़ करते हुए हैरत का इजहार किया है कि वो सिर्फ एक फ़िरक़े के लिए आईटी पार्क कैसे बना सकते हैं। मैंने इससे पहले ऐसा कोई ऐलान नहीं सुना। इससे यह जाहिर है कि केसीआर कमज़ोर हो चुके हैं। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस हुकूमत तश्कील पाते ही अंदरून 2 माह GO 111 का मसला हल कर दिया जाएगा। साथ ही शादनगर तक मेट्रो रेल को तोसी दी जाएगी।
ग्रेटर हैदराबाद को मुल्क में मिसाली शहर की हैसियत से तरक्की दी जाएगी। इख्तिदार हासिल करने से पहले ही कांग्रेस ने रैतू बंधु स्कीम को रुकवा दिया। इख्तिदार हासिल होते ही इस स्कीम को खत्म कर दिया जाएगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने आज असेंबली हल्केजा, शादनगर, चवेरला और इंदौर में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद जलसों से खिताब करते हुए कहा कि जियो 111 मनसूख करने के लिए तकरीबन काम मुकम्मिल हो गया है। थोड़ा काम बाकी है, वो भी बीआरएस की तीसरी मरतबा हुकूमत तश्कील पाने के बाद अंदरून 2 माह मुकम्मिल हो जाएगा। अवाम और किसान से अपील करते हैं कि वो हरगिज़ अपनी ज़मीन को फ़रोख्त ना करें। हैदराबाद के अतराफ को रहने वाले अवाम की अराजियात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए जियो 111 जारी किया गया था, मगर इसको बर्खास्त कराने की किसी ने कोशिश नहीं की। एयरपोर्ट करीब होने की वजह से सनतें कायम करने की कोशिशें नहीं की गई। मुस्तक़बिल में हैदराबाद के लिए कोई मसला पैदा ना हो, इसके लिए मास्टर प्लान की तैयारी लाजमी है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मुसलसिल दूसरे दिन तेलंगाना में बीजेपी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। उन्होंने शहर हैदराबाद में रोड शो किया, जिसके तहत मुशीराबाद और अंबरपेट हल्केजात का अहाता किया गया। आरटीसी चौराहे से काचीगुड़े तक 2 किलोमीटर रोड शो में बीजेपी रियासती सदर जी किशन रेड्डी और रुकन राज्यसभा डॉक्टर लक्ष्मण मौजूद थे। अवाम ने फूलों की बारिश करके वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। मोदी ने अवाम के इस्तकबाल का जवाब दिया और अवाम के इस्तकबाल से खुश हुए। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। काचीगुड़ा चौराहे पर वज़ीर-ए-आज़म ने सावरकर के मुजस्समे पर फूल निछावर किए। रोड शो के मौके पर पुलिस ने भारी बंदोबस्त किया था और सड़क की दोनों जानिब बैरिकेड्स लगाए हुए थे ताकि अवाम सड़क पर ना आए। रास्ते में जगह जगह पुलिस दस्ते मुतय्यन थे। सदर प्रदेश कांग्रेस रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि करप्शन और बदउनवानियों के सबब चेल्लापल्ली जेल में केसीआर और इनके अफराद खानदान के लिए डबल बेडरूम मकान तामीर किया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस की इंतखाबी मुहिम के तहत आज एलांडो, डोरंगल और कोरंगल में इंतखाबी रैलियों से खिताब में अवाम से अपील की कि करप्शन और बदउनवानियों में मुलविस केसीआर हुकूमत को इख्तिदार से बेदखल करके रियासत में तरक्की व खुशहाली के इंद्रम्मा राज का आगाज़ करें। उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट में करप्शन की हाई कोर्ट के बरसर खिदमत जज से तहकीकात का ऐलान किया और कहा कि कांग्रेस हुकूमत बीआरएस की तमाम बेकायदगियों की जांच करेगी। 15 साल से ज़ायद अरसे से हल तलब हल्के असेंबली खैरताबाद के मसाइल, बिलखुसूस सोमाजीगुड़ा कब्रस्तान का मसला हल करवाना अब मेरी जिम्मेदारी है और इन तमाम मसाइल को मैं खुद हल कराऊंगा। इमरान प्रतापगढ़ी, रुकन राज्यसभा व सदरनशीन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अखिलेती डिपार्टमेंट ने आज मख्ता मदार साहब में मुनक्किदा अज़ीमुश्शान जलसे आम से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि हल्का असेंबली खैरताबाद में पी विजया रेड्डी को दिया जाने वाला एक वोट सिर्फ विजया रेड्डी को नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और खुद इनके हाथ मजबूत करने वाला साबित होगा। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि तेलंगाना असेंबली चुनाव महज रियासत तेलंगाना का चुनाव नहीं बल्कि मुल्क में साल 2024 में होने वाले आम इंतखाबात का सेमीफाइनल है और आम इंतखाबात में जो लोग नरेंद्र मोदी को नाकाम बनाना चाहते हैं, इन्हें चाहिए कि वो असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए विजया रेड्डी को कामयाब बनाएं। हम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के बहुत दावे करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आल, अपना माल और अपने आप को कुर्बान करने की बातें करते हैं। ऐसी बातें करते हैं जिनसे ऐसा लगता है कि हमसे बढ़कर कोई आशिक रसूल नहीं, लेकिन अफसोस, सद अफसोस कि हमारे दावे, हमारी बातें सिर्फ ज़बान तक महदूद रहती हैं, हलक से नीचे नहीं उतरती। ये सब कुछ मुँह ज़बानी या ज़बानी जमा खर्च के सिवा कुछ नहीं होता और वहाँ हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताख व मलून गुस्ताखी का इर्तिकाब करता है तो हम कुछ वक्त के लिए चीखते हैं, पुकारते हैं, चिल्लाते हैं और खामोश बैठ जाते हैं, क्योंकि हमें अपने बीवी बच्चों, माँ बाप, भाई बहनों की, इनके मफादात की, इनकी ज़िंदगियों की, इनकी खुशियों और मसरत की फ़िक्र रहती है। नाज़रीन, जहाँ तक गुस्ताख व मलून का सवाल है तो आप अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी रियासत में असेंबली इंतखाबात की मुहिम जारी है और आज इस मुहिम का इख्तिताम अमल में आ रहा है। 30 नवंबर को रायदही होगी। हल्के असेंबली गोशा महल ख़ास तौर पर इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे करने वालों के लिए एक आजमाइश का मुकाम बन गया है, क्योंकि 2014-2018 के असेंबली इंतखाबात में हमारी गुनाहगार नज़रों ने देखा कि इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जान व माल, आल औलाद को कुर्बान करने वाले अपने घरों में सो रहे थे, ख्वाब गफलत में पड़े हुए थे, हालांकि इनके पास वोट की शक्ल में गुस्ताख रसूल के खिलाफ एक मौसर हथियार था। इश्क़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दावे करने वाले ने पोलिंग बूथ तक जाकर गुस्ताख के खिलाफ अपना वोट इस्तेमाल करने की जहमत नहीं की। याद रखो, अल्लाह अज़्ज़ व जल दिलों के राजों को जानता है। तुम्हारी सोच व फिक्र तुम्हारे मंसूबों से अच्छी तरह वाकिफ़ रहता है। तुम्हारी नीयत, तुम्हारे इरादे इससे ढके छुपे नहीं हैं। हमने शहर में मुख्तलिफ लोगों से बात की, जिनमें अक्सर तालीम याफ्ता इन लोगों का यही कहना है कि अब जबकि एक गुस्ताख और मलून गोशा महल से मुकाबला कर रहा है, गोशा महल के इन राय दहिंदों का फ़र्ज़ बनता है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वोट की शक्ल में इन्हें एक हथियार दिया है। वो 30 नवंबर को अलग सुबह अपने इस हथियार का इस्तेमाल करते हुए
गुस्ताख रसूल की शिकस्त को यकीनी बनाएं। आपको बता दें कि हल्का असम्बली गोशा महल, अफजलगंज, आगापुरा, सुल्तान बाजार, मौजम जाही मार्केट, नामपल्ली, स्टेशन रोड, बशीरबाग के कुछ हिस्सा और झिर्रे के एक हिस्से पर मुश्तमिल है। इस हल्के में राय दहिंदों की जुमला तादाद 2,66,909 है, जिनमें 1,39,526 मर्द वोटर्स और 1,27,350 खातून राय दहिंदे शामिल हैं। जहां तक मुस्लिम वोटर्स का सवाल है, इनकी तादाद 80,000 से जायद है। इंतखाबी मुहिम के दौरान मुखालिफ उम्मीदवार के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी करते हुए अवाम में उलझन पैदा करना आसान है, लेकिन जब बुरा वक्त आता है तो वही रास्ता इख्तियार करना पड़ता है जिसके इख्तियार करने पर मुखालिफ को निशाना बनाया जा रहा था। नामपल्ली असेंबली हल्के में कांग्रेस उम्मीदवार फिरोज खान के खिलाफ मजलिस ने कई काबिल एतराज़ वीडियोज़ जारी करते हुए मुसलमानों में यह तासुर देने की कोशिश की कि फिरोज खान इस्लाम से ज़्यादा दीगर मज़ाहिब का एहतराम करते हैं। अक्सरियती तबके के राय दहिंदों से मुलाकात के लिए इनके ईद और त्यौहार में शिरकत को गैर इस्लामी करार देते हुए नामपल्ली के मासूम राय दहिंदों के जहन खराब करने की कोशिश की गई। मजलिसी उम्मीदवार और इनकी टीम ने यह तासुर दिया जैसे इनसे ज़्यादा कोई और मुसलमान नहीं है। जहां तक दीगर मज़ाहिब के एहतराम का मामला है, इस्लाम ने किसी से नफरत का दर्स नहीं दिया है। अक्सरियती तबके में फिरोज खान की मकबूलियत से बौखलाहट का शिकार होकर मुहिम का आगाज़ किया गया, लेकिन आम मुसलमानों का एहसास है कि दीगर मज़ाहिब के एहतराम में कोई कबाहत नहीं है। दिलचस्प बात यह देखी गई कि नामपल्ली असेंबली हल्के के मजलिसी उम्मीदवार माजिद हुसैन ईसाई तबके की ताईद हासिल करने के लिए चर्च पहुंच गए। चर्च में पास्टर की जानिब से गुलपोशी और इन्हें आशीर्वाद दिए जाने की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अवाम का कहना है कि दीगर मज़ाहिब के लोगों से फिरोज खान की मुलाकात पर एतराज़ करने वाले खुद चर्च क्यों पहुंच गए। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना के बेहतर मुस्तकबिल को मजबूत बनाने, आरएसएस को कमज़ोर करने, मोदी, योगी, अमित शाह और प्रदेश कांग्रेस के सदर आरएसएस अन्ना को रोकने के लिए जहां से मजलिस मुकाबला कर रही है, मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को कामयाब किया जाए और माबाकी हल्कों में बीआरएस को वोट देकर कामयाब बनाए। बीजेपी के रियासती सदर किशन रेड्डी का यह कहना है कि ये हैदर कौन है जिनके नाम से शहर को मौसूम किया गया। ओवैसी ने कहा कि फातेह खैबर इल्म का दरवाज़ा खातून जन्नत शहजादी कौनैन के शौहर है। उन्होंने हसनैन करीमीन को यह तरबियत दी कि जालिम से कभी समझौता नहीं करना, अपने ख़ानदान को कुर्बान कर देना। इसी तरबियत के नतीजे में इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने करबला में यजीदी जैसी जालिम ताकत के रूबरू सर नहीं झुकाया और अपने ख़ानदान को कुर्बान कर दिया। हम इन्हीं हैदर कर्रार के नाम लेवा हैं जो हमारे दिलों में बसते हैं और हमारे औलाद के सीनों में महफूज हैं। बीजेपी ने इंतखाबात में इस तरह की हरकत करके हमारे दिलों को तकलीफ पहुंचाई है। सरजमीन हैदराबाद वाले बीजेपी को बताएंगे कि हैदराबादी अपने शहर से कितनी मोहब्बत करते हैं। हैदराबाद का नाम कभी तब्दील नहीं किया जा सकेगा। असदुद्दीन ओवैसी सदर मजलिस ने महेश्वरम हल्के के तहत शाहीन नगर में हालात हाजरा से और जुबली हिल्स के रहमत नगर डिवीजन के श्रीराम नगर व नामपल्ली के मुराद नगर और अली नगर में मजलिस के इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। हल्का असेंबली चंदान गुट्टे से मजलिसी उम्मीदवार अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मजलिस मजलूमों की आवाज़ है और अल्लाह इसकी लाज रख लेगा। तमाम साजिशें और मंसूबे नाकाम होंगे, जमात कामयाब होगी। उन्होंने शहरियान हैदराबाद से दरबंदाना अपील की कि वो पतंग के निशान को वोट देते हुए जमात के तमाम उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों चाहते हैं कि मजलिस और हैदराबाद के मुसलमानों का इत्तेहाद कमज़ोर हो। अकबरुद्दीन ओवैसी अपने हल्के के इलाके हबीब नगर रियासत नगर में मुनक़िदा एक इंतखाबी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने बताया कि बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रही है, जबकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का मंसूबा ये है कि ऐवानों में मुस्लिम नुमाइंदगी खत्म हो जाए।